जी आप देखो जरा मेरा माइक आपको चार्जर दें क्या? चार्जर देखो मेरा हो गया, आवाज आ रही है क्या? आप सब लोग जरा जूम में जुड़ जाएं या यूट्यूब में जुड़ा। अरे आधे 8 मिनट को हो जाएगा, आइए 8 मिनट को वो अभी बात नहीं करिए, आवाज करना। आवाज आ रही है? अरे हाँ तो आप कभी तो जूम में आ जाए। हाँ यूट्यूब पे इसमें आ रहा है कमेंट आ रहा है। यूट्यूब का भेजा है, ठीक है ठीक है। उधर किसी को बैठाना पड़ेगा आपसे? नहीं जरूरत नहीं है। हाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। मैं केवल आपकी वीडियो ऑन कर देता हूँ, बाकी बंद कर रहा हूँ। Friends, thank you all for attending this session on International Yoga Day, and special thanks to our Director HR, who is the chief guest today, and special thanks to our CGM Sri A.K. Sharma ji for blessing us, for giving the opportunity to conduct the Yoga Day. Mic करें on. हेलो ये अच्छा ये ऑन ठीक है सर, कोई इधर से कोई दिक्कत नहीं मोबाइल में आप ओके नमस्कार सर। So we welcome all honorable great souls who are attending this innovative, fruitful, problem-solving, disease-solving sessions, connecting all of you with yourself, your inner self, you connecting, energizing all 50 trillion cells, increasing life content, positivity, energy in you, reducing toxins and content and laziness. Through this time-tested, energetic, easy, sahaj, devised by our ancestors. Special thanks to our Chief General Manager, who has given us an opportunity, and our Director HR, Sri Arvind Vatnarkar, and who consented to be a chief guest, and also guest of honor, our CGM ATDC, Sri A.K. Sharma ji, Chairman KIPM Gorakhpur, Sri Randhir Singh ji, and R.K. Pandey ji, and Director Somsekhar, Director RKGIT Ghaziabad, who has helped us a lot, Dr. Somsekhar and Hemant ji,
Director REC Ambedkar Nagar, and all the friends, and all Akhil Bharatiya Yog Sansthan General Secretary Sri R.R. Paul ji, Treasurer Sri Girdhari ji, Vice President Dr. Madhu Poddar ji, Dr. Richa Sood ji, and all other office bearers and members of all Akhil Bharatiya Yog Sansthan, Shikshak Kalyan Foundation, Sri Jagdish Vik ji, Seva Sadan, Mission Swasth Bharat Ashirwad Seva Sansthan, Dr. Pushpendra Verma ji, Dr. Gautam ji, Mahanavta Ki Aur Kadam Tyagi ji, V.K.S. Paul ji, Amit Chauhan ji. Today we will be focusing on how in easy way in your life work, how you can gain your energy, how you can take yoga with you while walking, while talking, while sitting down, while taking bath, how you can take yoga with you, how you can be always energetic, ever anandit, ever happy, how you can be ever successful, how you can be ever nirogi. In very brief methods, detailing will be done in the later sessions. How to handle stress, how to be young beyond 125 years, how to be having a fruitful life. Our main focus will be the problem of sugar. People have given me the SMS. Please tell us about how to reduce the problem of sugar, blood pressure, stress, muscles and joints, energy, digestion, preventive and cure. Immunity, 7 chakras opening, memory, meditation, deep relaxation, yoga nidra, emotional quotient, and the AI, artificial and SQ, spiritual quotient, energy quotient, overlapping exercises will be there. Spondylitis, belly breathing, healing power by 1 crore sun energy which you already have inside you. So we will be starting how to warm up, how to get up early morning, and very simple methods. It's so simple, even a child can do that. So simple methods are available to tap energy already available in your chakras. So how to invoke those chakras? Simple methods are available. So we will start with one or the other. I will take the help of my friend Mr. Krishna ji also. So please, whenever you are getting up, what to do? First of all, you have to belly. 50% of the problem is due to your stomach problem. So how to do that? Whenever you are getting up in the morning, first of all, please get up as early as possible because your body is run by the solar system. So whenever I am getting up, what I am doing, I am multiplexing all the techniques so that at a time you will be able to do, if you don't have time, you are able to do 10 or more activities simultaneously. So it will give you the interest so that you can fulfill that. Whenever I am getting up, first of all, when I was lying down, how to get up, that you have to understand. Because most of the problem of the pain comes when you are coming from state to the wakefulness state. Please, whenever you are getting up, try to sleep like this. This is the sleep of a yogi. Please remember that. This type you should sleep, and whenever you are getting up, please, as slowly as possible, you just bend your knees, right knees. Very slowly. You should take minimum half a minute to turn. Please remember, your heart should not have any pressure. Very slowly you have to get up, and very slowly you will get up, and then you will not stand up. I will tell a lot of examples of my son also. He fainted, he was hospitalized because he has not taken care of this. So please remember, when I am sitting down, I have to sit down either in this pose or I have to sit down in the Vajrasana. I prefer Vajrasana. Suppose you have problem in sitting like this. How to sit down this? Please remember that as long as your spine is straight, energy will flow. So for this, what we can do, take a pillow. If you are not able to have a comfortable position, take a pillow like this. So this a small pillow or towel, you can keep it. So by this, see, automatically your spine is straight and your chest should be little ahead. So for that, you can press through your wrist and keep the chest like this. Now you should have a deep breathing. Please have a deep breathing. When you will have a deep breathing, what will happen? So now deep breathing, initially you have a deep breathing, and this will be alpha state of mind when you are getting up. I have not gone to the washroom. I have simply sat down, and this is the best time for any meditation. Means going beyond the mind. Going beyond the mind. Please remember,
आप when you are going 310 beyond the mind and having a 310 deep breath. 169 And in that, 151 what I think that I'm launching a rocket and going leaving the body. When I'm inhaling, I'm going beyond the universe, and then again, next, again, breathing in and breathing out, I'm going out. What will happen? You will not have a feel of the body. During sleep, you were not having a feel. Now again, I'm not having a feel of the body. So I can sit down for longer period, and this is a cool and calm place. I'm gaining energy much more than the normal days. So I'm gaining energy, so my day will be good. So this way, as long as you can sit down, as long as you can please sit down in this pose, and you can do the meditation. And when you will have a meditation, remember that half an hour meditation will be equivalent to more than 3 hours. मैं कह रहा हूं मैं आपको खोल लेता हूं आप यहां पे करके मैं Number one, this will reduce your stress. Number two, and also you will have a different state of mind, alpha state of mind. So this way, I'm getting up. After doing this, I'm taking water I'm having. I normally keep electric jet, switch it on, and then I take 2 liters 310. And how to take the 2 liters water? Please remember, for any stress, for anything, for sugar, for any disease, you need your stomach, your belly, your toxins to be out. So for that, these 2 liters of water will be very good. So in electric kettle, I am boiling electric kettle, having the gill oil, having the turmeric, adrak, and little 169 ginger and 159. जिंजर उसको मैं बॉईल कर देता हूँ और धीरे धीरे पीता हूँ सिप करके। एक गिलास पिया, मैं इस पोस्ट पे बैठा हूँ, देखें रोशन पे बैठा हूँ। हाँ लाइव। I was having from the childhood, I was having. इस पे चल रहा है जूम पे। In this pose, I am sitting on this pose. If you are not able to sit down, take the chair. Take the help of the chair, and you can sit down. You take the water, and at the same time, I am having a lot of audios जो मुझे आनंदित करता है। कहीं वेदांत का, कहीं ऑडियो चलता रहता है, इसको मैं पीता हूँ। I take the water. What happens? Earlier, I used to wait for hours together. Within a few minutes, I had to rush to water for clearing my stomach. And other thing is, throughout the day, I will not get any gases problem. So this way, morning I start. You can start it. It's wonderful. I'm using the turmeric also. तुलसी, थोड़ी तुलसी, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती जो भी है तो डाल देते हैं। थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं उसमें पानी में और उसको पीते हैं। तो ये it will be a matter of only 2 to 3 minutes. Throughout the day you will be running. Your stomach is clean, so half of the problem is over. Next, when I go to the washroom and then I come back and do the various one, and I take bath, and after that I sit down do certain things which you can do. I will do briefly will do within a half a minute. I will tell you. I normally 310 169 151. One Omkar sadhana is equivalent to 169 2 kilometers of run. Such a magic. 2 kilometers of run. What to do? I sit down in this pose and I will do the Omkar sadhana. A means lower three vertebra. O and these 3 chakras from the Muladhara to the up to the Manipur. These 3 chakras, and then these 3 chakras and then Bhramari pranayama also. You just see that. You must have done it, but you see that when I say this, I am feeling the vibration nearby. I am focusing there. Basically, I am energizing all the 3 chakras. तीनों चक्रा को मैं energize कर रहा हूँ vibrational technique से. I was in the sleep mode. I was in the alpha state mode. I am giving energy through the vibration. And I am opening these chakras so that these chakras energy, the potential in the Muladhara, these chakras should go up. These should go up. So the below the navel point, all the 3 chakras from navel to up, O, O, and Ma from here to here, Ma, up to the Sahasrara chakra. So these 3 chakras we invoke. Did you just see that? And after that, after all the air is out, I just keep my spine straight, take my belly in, take my Muladhara up, and then close the upper lung. So this is called the 3 bandha. If you are able to do this, please remember, this will give you 2 kilometers of running energy. Such a miraculous this Omkar sadhana is. All the saints used to do.
and by sitting they मिल used to गई obtain. अभी देख And in 1 second, just I will show गड़बड़ हो you. गई ना And आपने कहा था after this होगा बोला ना Omkar शायरी sadhana, कैसे होगी I will not do this Omkar sadhana for next 4 minutes because all the toxins which is collected, it has to be dispersed and send it to the excretory hours. आपके किडनी में जाना चाहिए इसको, तो उसके लिए 4 minutes I will do the dhyana. I will do the dhyana. I will leave the body. Whenever I am breathing in, deep breathe because I should not sleep. Otherwise, I may sleep. So I will have a deep breathe. That way, I am just launching the rocket, leaving the body, going to my own solar system, beyond the solar system. And whenever I am breathing out, again up, breathing in, again up, breathing out. So I am going out, taking my Lord with me. मैं अपने भगवान ईश्वर इष्टदेव गुरु को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, वही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ. That's how 4 minutes we do this. Then after 4 minutes when alarm will be there, again I will कस्टम कर रहा हूँ ना तो वो सीधा again I लाइव ही will पहुंच repeat जा रहा Omkar है sadhana. Then 4 minutes again ब्रॉडकास्ट dhyana. That way 5 times 25 minutes. This will be giving you the 10 kilometers running energy. Such a miraculous. So just a minute, I will just show you. कहाँ पे कहाँ क्विट होगा all the air is out. My navel point has gone totally in. I will close my nostril, taking my navel point totally in, and using the head, taking the lowermost portion Muladhara, holding as much as possible. If you cannot hold, open your mouth and then take the whole in. Now next 4 minutes I will only meditate. Breathing in, going up, breathing out, going up, breathing in, going up, breathing out, going up and up and up and up. 4 minutes. Then after this, that again I will. Okay, next. This is regarding the Omkar sadhana. Since I am sitting to 310169159. You have 7 infinitely potential chakras. How to open those chakras? If those chakras means flooded with different kind of energy. So Mooladhara is having infinite potential. It is the stability, it is the foundation stone. If Mooladhara is not okay, so then you cannot stand any problem in your life. So always having a lot of problems, lot of stress. So how to fulfill the requirement of Mooladhara? Mooladhara is the lowest point of your life. Name is Mooladhara. So here I will simply use the vibration technique. Color is red. See, 7 chakras, violet is the Shastra, indigo is third eye, and big your blue is your sky blue color is your thyroid gland. This is the pineal gland. Third eye is the pineal gland, and this is the thyroid. You are in thyroid. And this is the heart chakra. Green is the heart chakra. That is why whenever you see the green color, you feel very good. So here red is green, and here yellow. This your navel point is the yellow, and the excretory organs is the orange, and then red. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. You just see that these 7 chakras. If you are able to do only this, you will find a lot of energy flowing. If 50 trillion cells of your body, you can energize your cells magically. And similarly, see, just I am narrating, and with this, color is linked, so that color means lowest frequency is the red color. So color is linked and mantra is linked. So the lowest chakra, the Mooladhara, is having red color energy, and its mantra is Lam. You just see that in 1 minute I will tell you how to do this, and I am focusing my all focus, my all energy, my Ishdev is there sitting in the lowest point of the vertebra, which is called the Mooladhara, and you can see that, you can just feel that, and I am always having my spine straight. Please remember, spine is straight, so that energy should flow from down to up, and these energy bundles will go to all the 50 trillion cells. Red color energy will go to all. So when I speak, I will not be able to tell you. Connect Fill up your whole stomach, fill up your, first of all, fill up the stomach, and my diaphragm should be pushed down,
and my deep breathing should continue. Belly breathing is the key of all Are the we still exercise. in live, Jack? Lam. 310-169-15. Lam is the mantra here, but when I say One ma, second. ma means Brahmani, Brahmani means mind, relaxing all the points here. My The second energy concept will is flow from Shanti, here to up. That is why in all mantra we have ma means Brahmani pranayam. Brahmani pranayam means above the neck point. You are vibrating the nerves means you are relaxing the nerves. So red color energy, I am feeling the red color energy flowing from here to all the nerves, veins, all the cells, 50 trillion cells, and red color energy is flowing to all cells. Red color energy is energizing all, and similarly, all the cosmic red color energy is also flowing in and also flowing out, flowing in and flowing out. That's how I am inviting all cosmic energy to flow inside my whole, each and every cell. 50 trillion cells we have. Such a big army we have. We have to energize, we have to awaken. And for that, next is the VAM. VAM is the second excretory organs. So here, this is meant, first one was for the stability in your life. Second is for creativity. If this chakra is open, you will be much more creative. You will be able to create. You will be having scientific acumen. So for this, the color is orange. Orange color is there. And also mantra is VAM. Lam, VAM. Love Rama ya love Yama la is this, Lam, Va is this Vam. So Vam. I'm launching the rocket of orange color, energizing all the cells with the orange color, and the lot of energy is going to all the cells, and also from cosmic energy I am taking orange color, cosmic energy taking in, and also through the mantras and vibrational energy vibrating each and every cell. And that's how when I'm vibrating each and every cell is getting orange color, means every cell is becoming more creative and more intelligent. Remember that, more creative and more intelligent. That is the magic given by our saints and Lord. So this is the second chakra. My focus is only on the point where I am narrating the mantra. So second, focus point is my second excretory organs. Okay, so next is my this one chakra is the मणिपुर चक्रा, नाभि चक्रा, जहां भगवान राम ने रावण को तीर मारा, क्योंकि ये एनर्जी सेंटर है. एनर्जी सेंटर अगर आपका एनर्जाइज हो जाए, कोई भी आपको नहीं मार सकता. तो फॉर दिस एनर्जी सेंटर the mantra is Ram. Ram. Love Ram. You will remember Lam, Vam, Ram. The Ram is the mantra. Color is yellow. Be pure. Yellow color is there. So mantra is Ram. I am focusing on this. For that, initially you can keep your fingers. Later on, you don't need that. Later on, you don't need that. KKSDY. Simply search SDY. Krishna Kumar Singh Dev Yadav. KKSDY. आ जाएगा कृष्ण देना. With this, you can merge the Tribandha. I merge the Tribandha. So that Tribandha means enormous amount of energy will go. When all the air is out, I am taking the Nabhi totally inside, taking the Muladhara outside, and then using the Bandha. That's how I am using the mantra technique. I am using the Tribandha technique. I am using also the belly breathing also. So that's how multiplexing all the technologies from various sources. So that's how in a minimum time you are able to gain much more energy, and you will be, you will be disease free. So this is the Manipur chakra, Nabhi chakra, and Nabhi chakra is having yellow color, and also this is the energy potential. Those who are able to invoke this chakra, they will never have fear. They will have enormous potential all the time. What to do whenever you are feeling low, whenever you are having depression, whenever you are having the fear, what you have to do? You have 310 like child breathes. Basically, diaphragm should be down. You have a slow and deep breathing. 310-169-159. While walking, while moving, while sitting on the chair, that belly breathing you can do and hold it. 5, 20, 10 is the formula. By 5 counting you are inhaling, 20 counting you are holding, and 10 counting very slow relaxing from the body and going out in the air. The cosmic energy I am inhaling. Holding for 20 counting, 5, 20 and 10. Normally I do 10, 40 and
then 40 and 20. If you have a practice that you can do. With this counting, holding is the key. Bandh is the key. And remember that the bandh, three bandh is the key. Key of, see, whatever you can gain in 1 hour, you will be able to get in 2 to 3 minutes. Such a magical thing our saint has devised. Nothing has been devised by me. Remember, everything has been learned from either the books or the gurus. Okay. The next chakra is the heart chakra. So here you can use the tapping also. For this lowermost chakra, you can use the tapping, and whenever you are standing also, that also you can do. You can do the tapping for the lowermost chakra. For the second chakra, just below the navel point, you can have this chakra for the second chakra. Third chakra, just above the navel point, you can just tap it. Make the cup so that air pressure will up. The tapping technique devised by the Japanese. Please remember, this is the device. This is the tapping technique that this you are, and at the same, I do all. I do the vibrational technique, at the same time I hit it. So by this hitting, basically I am energizing these chakras. Basically, I am getting these energies of these chakras. Next is the heart chakra. So heart chakra, you can tap this mantra is yam or ma. Sa re ga ma. Sa re ga ma. Ma. Ma is the symbol of love. So this is the love chakra. So you can hit it small. This blockage will be removed. You can hit it, then you can love it, and all these points you can do. And mantra of this heart chakra is yam. Yam. I am marking because time is less and a lot of things are to be told. Yam. Nearby all the joints you have to hit so that the passage should be clear. Heart will not have much work to do nearby. Near obstruction is not there, and all these. The joint point you are hitting all these joint points. Okay, this way. And next is you have already done it. Yum. All the near joints we are hitting so that heart will not have near end obstruction, and then heart will function properly. And this chakra you have to follow. Please remember, while walking also you can do all these things. If you don't have time, whenever you are walking, you can do this. So at least you can hit it, and also you can focus on those things. Next chakra is your thyroid gland, which is meant for various problems in our life. So for thyroid gland, you have to hit it here, and this mantra is, remember, thyroid is violet, indigo, and blue. Sky blue color is the color, and mantra is hum, hum. Mantra. Hitting also, mantra also, vibration also, and sending consciousness also to my thyroid gland, so that my thyroid gland should function properly. At one point of time, I was having my thyroid 87. Normally, it should be below 4. Today it is much below 4. It is nearly 3.5 or 3.6. So please remember, I was having 87 continuously, and after doing this, it is reduced. And I am just feeling that the sky blue color is radiating from this to each and every cell, and also going to the cosmos, and from cosmos also sky blue color. I am inhaling. So that's how I am healing. So that's how I am learning, increasing my healing power. Next is this Agya chakra. Remember that this is responsible for Ma Saraswati. Please remember, this is responsible for your vocal and your leadership quality. If this is invoked, naturally your voice will be okay, your confidence will be better, and in this worldly affairs, you will be a very successful person if you are able to invoke this Ma Saraswati chakra. So the next chakra are the Vishuddhi chakra. So next is the Agya chakra. This Agya chakra, you are hitting the Agya chakra, hitting technique, and the healing technique is I am focusing all my attentions to my third eye, and the mantra is the Om. Mantra is Om, color is indigo. So deep blue color, indigo is there. So a mantra is Om. Om, and I can open my eye and see the third eye. Om.
going to each and every cell, 50 trillion cells. It is going to each and every cell, making me more and more intelligent, making me more and more visionary. This is the Divya chakra, third eye chakra, and when it is in vogue, nothing like it. You will be able to know the future, whatever is going to happen, it will come immediately. The telepathy will be many times more than earlier. You think people will be giving you a ring? So this is the miraculous chakra, third eye. That is why when all these tika, etc. is being here. Next, this color is the indigo. Next is the Sahasrara chakra, this 1000 petal chakra. This 1000 petal chakra, basically, hitting technique is this. Hitting technique is this. This is the Japanese style. You are hitting a skull, and this is the point from where the cosmic energy goes into you, and also you are also connected to the whole universe. So if this chakra is open, having 1000 petals means 1000 branches. So its color is violet, having the highest frequency in the visible range. So please remember, from here, if this chakra is open, you will be able to connect to the whole environment, Lord, nature, whatever you say, you are able to connect very easily. And mantra is, this is a Shanti, Om Shanti. So we don't chant it, we feel the peacefulness, the loveful being, the peaceful being. We are one, Ajar, Amar, Abhinasi. We are Ajar, Abhinasi. And after hitting this, and after Om, I feel after telling Om, from here, I make a passage and then we feel the peacefulness. Om. Then having the peacefulness, cooling and calm, soothing. You cannot retain for longer periods. So please have, you are going up and up and up, up and up and up. Whenever you feel sleepy again, you have to say Om. Because from here, you have to make the passage to the Sahasrara chakra. Om. Detailing we will do in some other session. These are the invoking of 7 chakras through hitting, through healing technique, through the vibrational technique, through the mantra technique, various techniques we have used it. Now, I will warm up. How to warm up ourselves? Because in the morning, so after doing this, we simply warm up, and also we will see that how the my sugar problem, the blood pressure problem can be resolved. Okay, with these you will be able to retain a lot of energies. So first of all, before this, I would like to go to the 5 minutes yoga, because sometimes some people they don't have time. So 5 minutes yoga. So we read the half Vajrasana. See, I will narrate. Half Vajrasana I will do. Okay. In the half Vajrasana, you just see that here he is simply doing this, simply here touching the lowest point of vertebra. So that how Muladhara is invoking the Muladhara, having the spine straight and also bending slowly, bending and touching the toes, slowly. जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाएं. Slowly you are touching the, and he has breathed out. That is why the stomach is rotating, so he is able to bend and coming back. And again, he will be, if you are doing one side, you have to do the other side also. Please remember, you have to do the other side also. So now left leg is bent. The toes of the left foot is touching your lowest point of the vertebra. And again, and he will take all the navel point inside, and slowly जहां तक आप झुक सकते हैं वहां झुकें. बस एक ही चीज है कि थोड़ी सी स्पाइन स्ट्रेट है. क्या आपको स्पाइन को किसी की स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, स्पाइन आपकी स्ट्रेट है, थोड़ा सा ऊपर जाएं और बिल्कुल ब्रीथ आउट करके ही आप उसको नीचे झुक सकते हैं. Next is the twisting of the body. Please remember, your vertebra should be twisted most often during the day. Oh, vertebra twisting होता है. आप इस तरीके से आए और ये आप देखें ये ऊपर गया, आप इसको इस तरीके से करके कितना ये टर्न कर सकते हैं. सबसे पहले इन्होंने बेली को ट्विस्ट किया, उसके बाद ऊपर ट्विस्ट किया. बेली को ट्विस्ट किया तो इसमें आप ये कपड़े की तरह जैसे निचोड़ते हैं, बॉडी को निचोड़ते हैं. ये आपके जितना भी फैट है, पेट का फैट है, साइड का फैट है, निकाल देगा. इसी तरीके से हम रिवर्स भी करते हैं. इसी में एक और भी है. चलिए अब देखिए, एक साइड में किया तो दूसरे साइड को भी करना है. और इसमें क्या हुआ, पहले नीचे ये मुड़े, जितना भी पीछे जा सकते हैं पीछे मुड़े. आप जरूरत पड़ेगी तो अपना हाथ भी रख सकते हैं.
अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो नीचे थोड़ा पिलो भी रख सकते हैं, आप अपने बैग में थोड़ा पिलो रख करके भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक ट्विस्टिंग मैंडेटरी है। नेक्स्ट हाँ, ये बटरफ्लाई ये बहुत जरूरी है आपके स्पाइन के लिए। जब तो सांस भरी हो पूरा नीचे आप अपने को जमीन की तरफ दबाएं जितना दबा सकते हैं। सांस छोड़े शरीर को ढीला, फिर सांस भरते पूरे दोनों घुटने को पूरा नीचे जमीन की तरफ दबा के जितना दबा सकते हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग, और सांस छोड़ के हिलाएं। फिर तितली आसन, बटरफ्लाई। धीरे धीरे करें। Please remember, in yoga you have not to give a jerk. You have to do smoothly like mobile handover. So you have to hand over slowly. It is for increasing the energy, not the giving the jerk. No jerk should be there. So slowly this will improve. And the last point is when my knee will be touching here. So after some certain practice, your target should be that, but it should go slowly. So please remember that. सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के नाक को घुटने पर slowly आपके जो जितना भी belly का आपका फैट है, फैट को वापस आएंगे। फिर अगले सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे नाक घुटने पर, फिर नीचे से वापस आते हुए फिर से। Please remember this. This is very good for the those persons who has already crossed 40. बहुत जरूरी है, females के लिए तो बहुत जरूरी है। Basically problem in the back is to reduce the back problem. Sarvanga, this is in the 5-minute capsule. Then Sarvanga. दोनों अंगूठे को लॉक बनाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हुए पीना। Please remember, जो नहीं झुक सकता आपको बहुत ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। Please remember it. Take a pillow, take a block also comes. Keep the block and press the block. Okay. एक वो आसन जरूर करें, बालासन बहुत जरूरी है जिनके शुगर की प्रॉब्लम है, बालासन की। तो बालासन आप देखें, हाँ पेट। ये आपके क्या होता है, आपका अग्नि तत्व बढ़ाता है। ये अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए जिनके भी शुगर है, जिनकी जो प्रॉब्लम है, जिसकी नहीं भी है तो वो शुगर नहीं होगी अगर आप इसमें करेंगे। फिर उसके बाद मकरासन करेंगे। देखिए आप इसको करना है और आप पहले करेंगे। पेट के दोनों पैर साइड में जान के ऊपर हाथ रखेंगे, पहले सांस भरें, फिर पूरा सांस खाली करेंगे, पूरा हाथ अंदर बहुत स्लोली जहां तक बेंड कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, खाली पेट में पूरा अंदर झुकेंगे और ये स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। ऐसा ना कि आपने गर्दन घुमाया, जिसकी स्पॉन्डिलाइटिस है उसकी प्रॉब्लम आ जाए। स्पाइन स्ट्रेट रहे तो ये क्या होता है, आपके गैस है जितने गैस को निकाल देगा पूरा। बहुत धीरे धीरे आना, दोनों हाथों को ठीक नाभि के बगल में लगाएं। सेम काम करेंगे, पहले सांस भरें। अच्छा एक और भी है, पेट को भी अंदर ले जाकर के तब झुकाएं। पेट को अंदर सांस निकाल कर पूरा पेट खाली होगा, हाथ अंदर की तरफ दबा के सामने की तरफ। स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। कंडीशन ये स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। कितनी देर रुक सकते हैं? रुकना इज द मैजिक, स्टेइंग इज द मैजिक। प्लीज रिमेंबर, पांचों उंगली करके नाभि को ऊपर लगाएं, नाभि को अंदर डालें। ये जितनी भी आपकी गैस है, तमाम प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है, आपके ब्रीदिंग बढ़ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम के लिए इसको करें। सांस को पूरी बाहर निकालें और तब झुकें। इसमें भी ऐड कर सकते हैं, जब ये काम बिल्कुल रुक जाए शरीर को रिलैक्स करके लॉकिंग भी कर सकते हैं। हा 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 हा। रिमेंबर व्हेन दिस की पत्नी यहाँ नहीं इसलिए हंस रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, पत्नी नहीं होगी पास। ठीक है, हाथ का खाली गया था लास्ट है, इसको नाभि के ऊपर रखें। एक बार ये कर लें, कैप रख लें। देखिए इस तरीके से कैप करके आपने इस तरीके से किया, यहाँ पे रखा, एयर प्रेशर से हम और सांस को, ये पूरी सांस को हम बाहर निकाल देते हैं। रिमेंबर, जब भी हम बेंड कर रहे हैं, सांस को हमने पूरी बाहर निकाल दिया, तब हमने बेंड किया। और जितनी ज्यादा देर रुकेंगे उतना फायदा है। अब ये सर्वांगासन। प्लीज रिमेंबर, सर्वांगासन इज वेरी गुड। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उसके लिए सर्वांगासन बहुत अच्छा है। सर्वांगासन में पहले तो उन्होंने अपने को रिलैक्स कर दिया, पूरा
तरह पूरा रिलैक्स कर दिया, गर्दन को भी रिलैक्स कर दिया। आप ये करके ऊपर जाएंगे, ठीक है? दोनों हाथों की मदद से दोनों पैरों को आराम से अपने शरीर के हिसाब से ऊपर ले सकते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट कर दिया। अब इसी में त्रिभुज भी लग सकता है, मैं त्रिभुज भी इसी में लगाता हूँ। इसी में आप देखें ये भी कर रहे हैं, पहले आप उस तरीके से कर लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, आप जॉइंट को भी कर सकते हैं पूरा इस तरीके से करते हैं। जैसे मैं इसको जो नीचे करना होता है इसी में, इसका फायदा क्या है? सांस खाली करते हैं ना घुटने पे लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, घुटने से करना है, वैसे करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें एक चीज और भी है, प्लीज रिमेंबर कि साइकिलिंग वगैरह सब मैं इसी नहीं करता हूँ, बाकी पे समझ नहीं है तो इसमें कम समझ है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या है? ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन। प्लीज रिमेंबर, आपकी तमाम प्रॉब्लम जो ब्रेन की है वो सारी खत्म हो जाएगी। इसी में मैं ध्यान में भी जाता हूँ। और इसको अगर आप नहीं कर सकते तो आप दीवार के सहारे भी, आप यहाँ मान लीजिए दीवार है, ये दीवार के नाम की बात, आप ये भी कर सकते हैं। जब भी आप देखते हो इस तरह से आप देखिए, आपको देखिए कितना फायदा हो। मेरा देखने का नॉर्मली यही तरीका है, इसलिए बहुत कम देर सोना पड़ता है। Why you sleep? Because your brain requires more oxygen. So in this process, you are giving more and more oxygen to your head. आप बेड पे तो आपको पैर की जरूरत नहीं, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, that blood is going to organs and here. जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप ऐसे पकड़ कर में आप देखिए थोड़ी देर में उनके वो ऑर्गन ज्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। ओके, इसी में आप लिस्टिंग कर लीजिए, इसी में साइक्लिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड साइक्लिंग कर लीजिए। तो ये हो सके तो कम से कम 5 मिनट जरूर करना। 5 हार्ड करना है, पीछे की तरफ सांस खाली करके, सांस खाली करेंगे तभी मोड़ पाएंगे। रिमेंबर, जब सांस खाली करेंगे तो आप इसको मोड़ पाएंगे, अगर सांस खाली करके तब करेंगे। इससे भी हार्ड करना है, शीर्षासन को नहीं, हलासन। ये हलासन है, इस शीर्षासन है करके करना है। हाँ, तो इसमें कोई हार्ड करना चाहता है। अब ये 1 मिनट, अभी जब सारा फॉरवर्ड बेंडिंग, अभी 10 मिनट का तो कैलकुलेट कर दो। अब बैकवर्ड बेंडिंग। रिमेंबर दैट पूरे दिन भर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। आप डॉग को देखिए, डॉग बैकवर्ड बेंडिंग करता है, तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग करना है। पहले स्ट्रेच करिए, सब कर सकते हैं। अभी दिखाएंगे, पहले अपॉइंटमेंट के कैसे खत्म। हाँ, पूरा स्ट्रेच कर दे, बॉडी पूरा ताड़ासन, लेट वाला ताड़ासन कर लीजिए पूरा। हलासन में लेते हैं कि बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए आप ऐसे भी कर सकते हैं, पंजा रखते हुए भी, अदरवाइज रिटर्न करते हुए रिलैक्स करेंगे, पूरे शरीर में पीछे गैप बनाएंगे, एड़ी अंदर की साइड होगा और पैर के अंदर। रिलैक्स करने का तरीका क्या? रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू रिलैक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, लेटे हो, प्लीज हैव डीप ब्रीथ। Deep breathe in, your belly should expand, and slowly you have 5-20-10 formula. Please remember, it will give you a lot of relaxation. Within 5 minutes, your energy will be boosted. सबसे बढ़िया कैप्सूल है। तो breathe in. दोनों पैरों को मिलाएं। इसमें कई तरह अलग-अलग तरह के भुजंग आसन होते हैं बैकवर्ड बांधने के लिए। तो आप ये चाहें तो दोनों घुटने तक आप यहाँ पे रखें और पेट को जमीन में दबाएंगे, सर को धीरे-धीरे ऊपर करना है, बहुत धीरे-धीरे। प्लीज रिमेंबर, मोबाइल की वजह से लोगों की गर्दन की प्रॉब्लम आई है, इसमें स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। और फिर धीरे-धीरे आपको धीरे-धीरे पहले आप ताड़ासन करते हैं, वहां से स्टार्ट करिए। एक सीरीज चलाइए, लोगों को इजी तरीका बताना है कि देखिए आपने कर लिया, पूरा खींच लिया, पूरी बॉडी आगे खींच ली, बॉडी एक हनुमान जी की तरफ तैर रहा है, जय हनुमान। फिर उसके बाद आपने किया। अब एक जॉइंट्स को आप देखेंगे, एक जॉइंट्स को। इसके बाद थोड़ा पीछे आए, जब लेफ्ट घूमते हैं तो राइट फुट देखना चाहते हैं, राइट है तो फिर आप एक जॉइंट को ऊपर नीचे किया, राइट करते हैं तो लेफ्ट वाला फ्लो देखना चाह रहे हैं, लेफ्ट से राइट, थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये एक भुजंग आसन भी इसमें आप करेंगे। रिमेंबर, इस समय आप देखिए आपकी तमाम मसल्स स्ट्रेच हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सारी मसल्स स्ट्रेच हो रही है। धीरे-धीरे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, धीरे-धीरे पेन टॉक्सिन्स आपके सब खत्म हो जाएंगे। धीरे-धीरे, कोई हम जर्क नहीं दे रहे हैं, जहां तक आप कर सकते हैं आप वहां तक करें। जब हम इधर कर रहे हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट वाला फुट देख रहे हैं, राइट जा रहा है तो लेफ्ट वाला, फिर थोड़ा सा ऊपर आए।
इसी तरीके से और इसी तरीके से और इसी तरीके से और सकते हैं और कंधे से भी रख सकते हैं, अपने शरीर के हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से और इसी तरीके से और आप चलते जा रहे हैं इसी तरीके से और हम हर एक वर्टिब्रल जॉइंट को देखिए हील कर रहे हैं। अब नहीं कर पा रहे तो हाथ को कुछ जो मैं चेंज किया आप देखिए। अब मैं अपने टोस के ऊपर हो गया, तो मैंने बैकवर्ड बेंडिंग की, फॉरवर्ड बेंडिंग दिन भर करते हैं। और डॉग को देखिए, डॉग हमेशा आप जब भी उठता है तो आपको देखिए इस तरीके से करता है। अब क्या करेंगे फिर, क्योंकि सीरीज आपको मेंटेन है, ये देखिए आप पेट के ऊपर दोनों हाथों को पैरों से लॉक बनाना है। अब आप इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट को पकड़ के करिए, डिफरेंट पॉइंट आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी करिए। तो आपकी जो बेली की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम प्लस साथ में मसल्स, साथ में आप मसल्स कभी एक साथ कई काम कर रहे हैं। सूक्ष्म प्राणायाम में एक और है, कभी आप थक जाए, आपको मोबाइल पे बात करना, तो नॉर्मली मैं तो घर में बात करता रहता हूँ। देखिए मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मोबाइल में भी बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप ये आप शिथिलासन भी कर सकते हैं। तो इसमें बायां हाथ पैर के पास सीधा रखना है। ये बचपन में करने से बड़े होके भूल गए। ये बीपी कंट्रोल करने के लिए होता है। बाएं हाथ को फोल्ड करें, पैर को फोल्ड करें, दाहिने हाथ से अपने गाल लिया बार। तो ये आपने गाल को पूरा जमीन पर रखना है, हाथ पे यस क्लिक और पूरे आंख बंद करते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जब आप इस तरह से आएंगे तो आपकी अपोजिट नॉस्ट्रिल चलती है। रीजन हुआ है, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी। तो अभी हम बताते हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। जैसे ये लेटे हुए हैं ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो लेटे हुए तो हम क्या करेंगे, हमें नींद नहीं आ रही, मैंने भी बताया नींद नहीं आए तो हम क्या करेंगे। नींद नहीं आएगी तो आप लेट जाए, कोशिश करिए। योगियों को लेटने का ये तरीका और रोगियों को लेटने का तरीका पेट के बल है। अब हम राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे लेंगे। 5-20-10 फार्मूला, 5 काउंटिंग मैंने दिया, बेली भी बुलाया, 20 काउंटिंग तक होल्ड किया और 10 काउंटिंग तक धीरे धीरे छोड़ा। ये आपका ब्लड प्रेशर लो करने के लिए भी काम में आता है और आपको तमाम रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी एक्टिव है। वाटर कंटेंट भी बढ़ाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ाएगा। और अगर आपको कफ ज्यादा है, खड़े होकर के राइट नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करें। और राइट नॉस्ट्रिल आपका सूर्य नाड़ी, तो ये सारे कफ को, वाटर एलिमेंट को पिघलाएगा। अगर आप खांसी से ज्यादा है, राइट नॉस्ट्रिल से लें, ठीक है। ये तो था 5 मिनट का कैप्सूल। इस 5 मिनट में आप अपनी बॉडी को तमाम एनर्जाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो हम क्या करें, है ना। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हो तो आप देखें, तो आपको ठंडक हम चाहिए, गर्मी बहुत है, ठंडक चाहिए। तो आपको करने के लिए क्या चाहिए, आपको अपनी चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल करना है। तो 2 तरीका है, ये देखिए सीधी प्राणायाम, आप टंग को करते हैं। एक साथ मैं कई काम कर रहा हूँ, आप देखिए मल्टीप्लेक्स की ओर मैंने इस तरीके से वज्रासन में भी बैठे। ये एक ऐसा आसन है जो कभी भी बैठ सकते हैं। इसमें बैठने में दिक्कत है तो एक तकिया लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसे बैठ जाए। और आप देखिए ये मेरा इधर है, तो एक दूसरे से टच हुआ, ये बाहर है बॉडी के, कुर्सी बनी हुई है, ठीक है। ये एक ऐसा आसन है जो आपकी अग्नि तत्व को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन बढ़ाता है। अब हम देखिएगा टर्न में कर रहे हैं, मैं बोलता जाऊंगा, फनल बनाते हैं। स्लो एंड डीप, प्लीज रिमेंबर, मैं बेली ब्रीथिंग भी ऐड कर रहा हूँ इसमें मैं फीलिंग भी ऐड करूंगा, इसमें तमाम हीलिंग पावर भी ऐड करूंगा। देखिए फनल को ऐसे बनाया, सारी कॉस्मिक एनर्जी को हम भरते जा रहे हैं। पहले हमने पूरा बेली भर लिया, फिर हमने तो भर दिया, मैं डायफ्राम को हमने पुश किया। 20 काउंटिंग तक मैं होल्ड करके रखूंगा, होल्डिंग इज द की, 20 काउंटिंग तक। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। अब बहुत धीरे धीरे धीरे, जितनी धीरे हो सकता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे।
दिस इज द चंद्र नाड़ी। तो हमने कई चीज मिक्स की है, कई प्राणायाम मिक्स किए, मुझे बहुत फायदा हुआ इससे। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था, भी बिल्कुल ना। शीतली प्राणायाम किया, एक इसके बाद दूसरा भी प्राणायाम है, दोनों दांत को कर दें और खींचे। होल्ड करके 20 काउंटिंग पे होल्ड किया। जब आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, जिसको गर्मी बहुत लगती है, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसके लिए ये, लेकिन जिसको कफ ज्यादा है उसको ये नहीं करना चाहिए। कफ के समय आपको इसका उल्टा करना है। क्यों? आपको अपने कफ को पिघलाना है, तो उसके लिए आपको सूर्य नाड़ी का सहारा। तो आजकल जो कोरोना के समय जो हम लोगों ने किया है, जितने लोगों को हम लोगों ने सिखाया है कि हमने राइट नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल किया है कोरोना के समय, क्योंकि मुझे अग्नि तत्व को बढ़ाना था, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मैंने अधिकतर प्रोसेस में राइट नॉस्ट्रिल से लिया है और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही हमने निकाला। अब एक और तरीका है, तो आप देखते होंगे, हम राइट नॉस्ट्रिल से जब मुझे अग्नि तत्व को बढ़ाना है, हम राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं और हम मुंह से निकालते हैं, क्योंकि मुंह लंग्स के बहुत पास है, मुंह से हम निकालते हैं। रिमेंबर दैट अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो काम जल्दी नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर, आपके ब्रीथ स्लो एंड डीप इनहेलिंग एंड होल्डिंग, देन स्लो एंड डीप एक्सहेलिंग। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो जल्दी जल्दी करना, अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको अधिकतर प्राणायाम जल्दी जल्दी करना। प्लीज रिमेंबर, नंबर ऑफ ब्रेथ इन द लाइफ इज लिमिटेड। तो हम ब्रेथ को इलांगेट करते हैं, हम ब्रेथ को छोटा छोटा नहीं करते, छोटा ब्रेथ नहीं करना है। तो अब देखिए कैसे हम कोरोना से कैसे बचें, और तमाम जो जिनको म्यूकस की प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम है इसकी लो ब्लड प्रेशर की, जिनको ऊर्जा की प्रॉब्लम है, वो राइट नॉस्ट्रिल को इस्तेमाल करें। देखेंगे कि राइट नॉस्ट्रिल कैसे करते हैं। मैं जॉ से कर लेता हूँ, मैंने अगर जॉ दबाया राइट, तो मेरा राइट नॉस्ट्रिल चलता है। आप चलते चलते भी कर सकते हैं, और आप अगर आपको उंगली चाहिए तो देखिए राइट नॉस्ट्रिल से मैंने लिया। स्लो एंड डीप ब्रेथ, जैसे बच्चे को नहीं पता लगता, मुझे भी नहीं पता लगना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैं भरता चला जा रहा। अगर मुझे अग्नि तत्व बढ़ाना है इससे आपका हंसी का भाव भी आएगा, तो आपने इससे आपके कफ भी पिघलेंगे। हम नाक से ले रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं। तो मेरे जो टॉक्सिन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मुंह लंग्स के ज्यादा पास है तो आसानी से निकाल पाता है। इसी तरीके से आप उल्टा भी कर सकते हैं, मुंह से लेकर नाक से निकालें, लेकिन बेस्ट ये है कि नाक से लेकर के मुंह से निकालें, क्योंकि फिल्टर होके जाती है, आपकी एयर फिल्टर होके जाती है। अब हम आते हैं कुछ आसन पे। थैंक यू। अब हम आसन पे आते हैं, क्योंकि एक तो आपने देखा होगा, ये जितना भी हमने पेट का काम कराया था, ये सारा आपके जो शुगर के लिए बहुत जरूरी है। अब आसन आप देखें कि जब भी आप बैठे, क्योंकि आप जिस पोज पे बैठे हैं, हम उसी से पहले हम आसन चालू करते हैं। देखिए आप इस पोज पे बैठे थे, तो इस पोज पे आए, अब आप इस तरीके से घूमते हैं, साथ में डीप ब्रीदिंग करते जाते हैं। अनुलोम विलोम इज बेस्ट वे टू बैलेंस योर लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। नॉर्मली मैं चलते फिरते भी अनुलोम विलोम करता हूँ, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, मतलब लॉजिकल ब्रेन और विजनरी ब्रेन, वो बैलेंस है। तो राइट ब्रेन से लिया, लेफ्ट निकाला, लेफ्ट से लिया, राइट निकाला, ऊपर नीचे। जब हम चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं तो हम इनहेल करते हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्सहेल करते हैं। अब हम आते हैं पर्वत आसन। बहुत जबरदस्त आसन है, आप इसको देखें पर्वत की तरफ, पंजे के बल हैं अभी। अधिकतर समय में आप इसको करें।
तो मैंने पीछे मुड़ने का देखा, तो ये देखा। अब इसके बाद एक और आसन जो बहुत जरूरी है बताना, अब आप जैसे लेटे हैं तो आप देखिए कितनी सारी मसल्स स्ट्रेच हो रही है आपकी। जितनी देर हो सकते हैं धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आए। इसके बाद याद रखिए ट्विस्टिंग इज द की। आप इस तरह से भी ट्विस्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे गर्दन भी जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। अब हम रिवर्स में आते हैं, इस तरह से पहले किए, फिर हम टांग को ऐसे ले आए। तो आप देखिए अपने बेली को ट्विस्ट कर रहे हैं, तमाम मसल्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेट के लिए जो 5 डिग्री करते हैं, आप देखिए यहाँ वाइब्रेशन होगा। जितनी देर कर सकते करें, थोड़ी देर में यहाँ वाइब्रेशन होगा, इसका सारा फैट पिघलने लगेगा। नेक्स्ट आप अपने इसको बेंड करते हैं, रिमेंबर इट, हम स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करते हैं, सांस पूरी छोड़ते हैं, नाक को यहाँ छोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे इसको भी करते हैं। बहुत जबरदस्त है ये, शुगर के लिए तो बहुत जरूरी है। याद रखिएगा तो अब याद रखिएगा सबसे जो ज्यादा जरूरी है कि आपको रिलैक्स करना हर एक्सरसाइज के बाद। तो शिवासन, शवासन की बजाय हम शिवासन कहते हैं। अब देखिए हम योग निद्रा इसी में सिखाते हैं, शवासन हर एक्सरसाइज के बाद लेट जाएगा शिवासन। देखिए इसमें कुछ टच पॉइंट है। शवासन को हम योग निद्रा में कन्वर्ट करते हैं। इस योग निद्रा ये मैजिकल चीज है, ये आपको कई बार 5 मिनट 10 मिनट में बहुत ऊर्जा दे देगी। 45 मिनट में पूरी रात भर की नींद के बराबर ऊर्जा मिलती है। तो पहले हम स्ट्रेच करते हैं, खूब इसको स्ट्रेच करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे कि लेटते समय आपका शरीर अकड़े लें, मुट्ठी मुट्ठी बांध करके पूरा कर दें, इसको भी पूरा कर लें, पूरा बिल्कुल कर दें, जिससे जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो पूरे फिर उसके बाद छोड़ दें डेड बॉडी की तरह। एंड मैं इमेजिन करता हूँ मैं चाकू से अपना पूरा शरीर काटता हूँ, इमेजिन करता हूँ, इससे कि मेरा बॉडी अब मुझे तंग ना करे। अब मैं इमेजिन करता हूँ जब ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो ब्रीदिंग करते समय पूरी कॉस्मिक एनर्जी 1 करोड़ सूर्य के बराबर एनर्जी मेरे पूरे बॉडी के एक एक ऑर्गन में ब्रीद इन, हम डीप ब्रीथ करते हैं, पूरे एक एक ऑर्गन में 50 ट्रिलियन सेल्स में जा रही है, और वहां से सारी कार्बन डाइऑक्साइड निगेटिव टॉक्सिन लेके वापस आ रही है, जा रही है। अब हम इमेजिन करते हैं ये पूरी एनर्जी आई एक एक सेल्स में, एक एक न्यूरॉन में 200 करोड़ न्यूरॉन में हो करके धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे राइट हैंड में गई, एक एक जॉइंट्स को देख रहा है, एक एक नर्व स्पेस को देख रहा है, और यहाँ पे कलाई को देखते हुए, अंगूठे के एक एक जॉइंट को देखता हुआ, एक एक जॉइंट से होता हुआ वापस आ रहा है। फिर अब धीरे धीरे सारे रिब्स में जा रहा है, रिब्स के बाद पेल्विक गर्डल में जा रहा है, हम पेल्विक गर्डल को भी देख रहे हैं। बेसिकली आई एम हीलिंग, बेसिकली आई एम हीलिंग ऑल दोस ऑर्गन्स व्हेन आई एम सीइंग दिस। मेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो सब ओवर हो जाएगी। धीरे 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 एक एक नर्व्स, वेन्स, मसल्स, जॉइंट्स को देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको हमने ब्रीथ से जोड़ दिया है, यही ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, एक एक सेल्स को हम देखते चले जा रहे हैं, और हर एक जॉइंट को, हर एक सेल्स को, हर एक बोन को देखते हुए फिर ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद फिर ऊपर चले आते हैं। अब हम अपने बाएं तरफ जॉइंट्स को देखते जाते हैं, सारे जॉइंट, नर्व, वेन, बोन्स को देखते हुए, मसल्स को देखते हुए जा रहे हैं। फिर हम इसको नीचे होते हुए लेग के सारे पॉइंट पे चले जाते हैं। इस तरीके से छो करके हम फिर पेट पे आ जाते हैं।
अब हमें पेट को हील करना है। 50% से ज्यादा प्रॉब्लम तो पेट की है। Wherever you pay attention, wherever your attention goes, energy flows. 1 करोड़ सूर्य के बराबर एनर्जी जब आपके स्टमक में जाएगी तो स्टमक का तो सारी प्रॉब्लम ओवर हो जाएगी। नाउ स्टमक की इनसाइड ही स्पेस कहां से पूरे स्टमक को हम देख रहे हैं। तो ये हम कैसेट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हम स्टमक को एक एक पॉइंट को देखते जाते हैं, उसके केमिकल्स को देखते जाते हैं, जो जो दिखता है, जो इमेजिनेशन में स्टमक के एक एक पॉइंट को देखते हैं, फिर स्टमक से निकलते हैं छोटी आंख बड़ी आंख होते होते पूरी देख करके हम सब कुछ देखते हैं, देखते जाते हैं। सारी इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है, इंटेस्टाइन को देखते जाते हैं। यू आर हीलिंग द इंटेस्टाइन, यू आर हीलिंग द योर स्टमक एंड गट लाइन। तो इस तरीके से उसको करने के बाद आपके जिस ऑर्गन की प्रॉब्लम, सपोज योर हार्ट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, नाउ next 15 days I will see more my heart and you see the result, see the magical result। तो हम अपने हार्ट को ज्यादा देखते हैं, तो हार्ट को देखते रहते हैं तो मेरी एनर्जी फ्लो होती है, तो मेरी एनर्जी वहां फ्लो होती है तो वहां सारी प्रॉब्लम। तो माय फोकस इज टुवर्ड द हार्ट। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर लंग्स की प्रॉब्लम है लंग्स, अगर मेरी जॉइंट की प्रॉब्लम है जॉइंट, तो वेयरएवर माय प्रॉब्लम इज देयर आई विल बी फोकसिंग। लीवर की प्रॉब्लम, हम लीवर को फोकस करते हैं। अब हम आते हैं डीप रिलैक्सेशन। हम थक गए, हम ऑफिस गए, थक गए, तो मैंने पहले बताया था चलते समय, मैंने बताया था ये सारी चीजें आप चलते चलते कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से राइट स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आगे पीछे, ठीक है। मॉर्निंग वॉक अधिकतर लोग करते हैं, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू योगिक मॉर्निंग वॉक एंड डीप ब्रीदिंग आल्सो। बेली ब्रीदिंग हम करेंगे 5-20 का। देखिए ब्रीदिंग एक अलग है, हाथ घुमाना एक अलग है, ब्रीद आप कर ही रहे हैं तो ब्रीद आप एक स्पेसिफिक स्टाइल से करें। 5-20-10 में आगे किए। मान लीजिए आप थक गए, अब क्या करेंगे, घर पहुंचे, ऑफिस पहुंचे, 15 मिनट 5 मिनट में देखिए क्या होता है। आप इस तरीके से आ गए, अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन यहाँ नहीं हो रहा है, ये सारा ब्लड हमारा यहीं ऑर्गन में जा रहा है। इसी में मैं अनुलोम विलोम करूंगा। हाँ, इधर से लिया 5-20 होल्ड किया, 10 धीरे धीरे छोड़ा, 5 दिया होल्ड किया, 10 छोड़ा, 5 दिया होल्ड किया, 10 छोड़ा। इसी के साथ साथ मैंने ऑडियो कैसेट भी लगा दिया योग निद्रा का। मुझे एक एक ऑर्गन को फील करने का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, मेरा माइंड मेरे सारे ऑर्गन में जाएगा। ब्लड भी ज्यादा है यहाँ पर, ब्रेन में भी ब्लड ज्यादा है। मेरे ब्रेन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा ब्लड की, ऑक्सीजन की है। तो मेरी ऑक्सीजन में जो काम आप 2 घंटे में आप रेस्ट कर रहे हैं ना, वो काम यहाँ आधे घंटे में होने वाला, कई बार 10 मिनट में हो जाए। तो इस तरीके से मैंने आंख बंद कर दिया तो आउट एनर्जी खत्म, सबसे ज्यादा एनर्जी यही देता है। आंख बंद कर दिया, थर्ड आई को हमने प्रेस किया तो मेरा आगे तक भी इन्वोक होगा। जिन पॉइंट को ज्यादा टैप करेंगे दबाएंगे, और इसके द्वारा देखिए ना, राइट नॉस्ट्रिल से लिया, होल्ड किया, दूसरी नॉस्ट्रिल से बहुत धीरे धीरे निकाला 5-20। इसमें एक और ऐड करते हैं, त्रिवंत भी ऐड कर देते हैं। जब मैंने पूरा निकाला तो मैंने क्या किया, अपने गुदाद्वार को ऊपर खींचा, नाभि को अंदर ले गए, और ऊपर वाला भी लाभ, नीचे का तो 2 लाभ लगा दिया, एक लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ। जब नहीं रोक पाए, पूरी सांस निकल गई, पूरी सांस निकल गई, तो मैंने होल्ड करके रखा। अब जब नहीं होल्ड कर पाए तो मैंने सांस लिया। जब सांस ले लिया मैंने, मेरा पूरा गली भर गया, लंग्स भर गया, उसके बाद भी मैंने क्या किया, फिर मैंने बंद लगाया, फिर बंद लगाया। अब क्या हुआ, इसी में एक और प्राण आकर्षण क्रिया भी ऐड करते हैं कि मैं अपने गुदाद्वार को, जब मैंने सारा निकाल दिया, गुदाद्वार को झटके से खींचते हैं, इसको कहते हैं प्राण आकर्षण। मतलब ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा एयर से, प्राणवायु से निकालना, इसको कहते हैं प्राण आकर्षण। देखिए एक बार करते हैं, मैंने भर दिया गुदाद्वार, नाभि अंदर,
सारा खाली कर दिया, सारा खाली करने के बाद फिर 5 से कट कर दिया, फिर अपना गुदा दबा खींचा आगे अंदर। इसको हमने अनुलोम विलोम से भी जोड़ा, इसको मैंने हीलिंग पावर से भी जोड़ा, इसको मैंने बेली ब्रीदिंग से भी जोड़ा। इसको करने के बाद कई बार 10 मिनट में इतनी ऊर्जा मिलती है कि घंटे भर में नॉर्मली नहीं मिलती। कभी थकान हो, कभी कुछ हो, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन का ये तरीका अपनाएंगे, कहीं भी कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा थी। वजह क्या था? एनर्जी वाज स्टोर्ड, energy was not able to flow in your required organs. Please remember. And breathing is the key. प्राण वायु ही प्राण देती है। अब हम बहुत धीरे धीरे जब हम उठते हैं तो बहुत धीरे धीरे उठते हैं। Remember it. उठने का समय आपका $1,000,000 का। बैठने का एक ही तरीका आपका है, बैठने कोशिश करें, आप वज्रासन में बैठे कोशिश करें। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो यहाँ तकिया लगा लें, टॉवेल लगा लें, और दिक्कत है तो यहाँ दबा दें, आप बैठें। और अगर किसी का तो सबसे पहले मैं सभी महान आत्माओं का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने आज इंटरनेशनल योगा डे अपने लिए और अपनों के लिए आपने एक अच्छा प्रयास किया, आपने चीजें देखी। आप बहुत सारी चीज करते भी होंगे, समय बहुत कम था, क्योंकि उद्देश्य ये था कि आपको एक हिंट दिया जाए। यहाँ जो 1 मिनट में बताया गया, नॉर्मली 1 घंटे में बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उनको ऐड किया गया। कुछ चीजें कुछ को पसंद आएगी वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आप लोग कोई मैसेज करेंगे तो पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए काम होगा। जैसे आज हमने क्या क्या एड्रेस किया, हीलिंग पावर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इसी में हमारा बेली ब्रीदिंग, इसी में हम लोगों ने हीलिंग पावर, इसी में शुगर, इसी में तमाम चीजें, इसी में कैसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लें, कैसे हम अपने ब्रेन को स्ट्रीमलाइन करें। इसी में हमने ये भी देखा कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कैसे कंट्रोल करें, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं, 7 चक्रास को कैसे इन्वोक करें। आप देखिए 7 चक्रास, इसके कई मेथड हमने एक साथ मर्ज किए। टैपिंग टेक्निक जो कि नॉर्मली जापानीज यूज करते हैं, टैपिंग टेक्निक इंडिया वाले नहीं यूज करते। वाइब्रेशनल टेक्निक हमारी एंशिएंट स्टाइल थी। कलर थेरेपी भी हमने यूज की कि कलर के मंत्रा टेक्निक यूज की। इस तरीके से इन सब चीजों के लिए मैं आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ हम अपने मित्र, हमारे चीफ जनरल मैनेजर श्री शर्मा जी, इनकी वजह से आज ये सेशन हुआ, और हमारे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जो श्री कृष्णा जी, कि काफी कुछ इन्हीं की मदद से सब हो पाया, और हमारे महामंत्री जी अखिल भारतीय योग संस्थान के, और हमारे गिरधर जी जो ट्रेजरर हैं, जो कि हमारे इन्हीं की वजह से, क्योंकि मैं तो बाहर से आया था, इन्होंने कहा साहब होगा नहीं तो ये 1 दिन 2 दिन के अंदर ही अरेंज हुआ। किसी को अगर कुछ पूछना हो, किस चीज हो, तो आप बता दें। शासन में थैंक यू। आप पूछिए सर। हाँ, जो पूछना हो तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। किसी को कोई पूछना हो तो आप बता सकते हैं। हेलो, आवाज नहीं है। हेलो हेलो, वेरी गुड। हेलो, आवाज हेलो, किसी को कुछ पूछना है भाई? मैं डायरेक्टर RKGIT और हमारे चेयरमैन KIPM, हमारे डायरेक्टर डायरेक्टर REC अम्बेडकर नगर, और तमाम संस्थाएं जिसमें कि हमारे सेवा सदन, मिशन स्वस्थ भारत, और तमाम लोगों ने इसमें मदद की। अखिल भारतीय योग संस्थान के सभी पदाधिकारी और सभी लोगों ने काफी मदद की। और ये जगह जगह बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। मानवता की एक कदम, आशीर्वाद सेवा संस्थान, सेवा सदन, शिक्षक कल्याण फाउंडेशन, और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है। आप लोगों को जो अच्छा लगा या बुरा लगा इसको थोड़ा कमेंट करें। कमेंट बहुत तो अच्छा लगेगा। हमने बहुत अच्छा कमेंट लिया।
कुछ अच्छा हो, क्योंकि कोशिश ये थी कि आपको 10 घंटे की चीज 1 घंटे में बताई जाए, इसलिए बहुत जल्दबाजी में हुआ। नॉर्मली इसमें कम से कम 10 सेशन होंगे, और क्योंकि आज योगा डे था, जस्ट एक ग्लिम्स, एक समरी भी नहीं, किसको कहेंगे, फार्मूला कोडिंग दी गई, एक कोड दिया गया कि इस कोड के माध्यम से आप कैसे अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सकते हैं, कैसे हमेशा सक्सेसफुल रह सकते हैं, हाउ टू बी एवर हैप्पी, हाउ टू बी एवर सक्सेसफुल, एंड हाउ टू बी एवर एनर्जेटिक, लिंकिंग ऑल योर सेल्स, लिंकिंग ऑल योर ऑर्गन्स, लिंकिंग ऑल योर सेंसेस, और आपके अंदर परमात्मा की सारी शक्ति उपलब्ध है, उसको हम कैसे टैप करें, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल नीड्स से। तो किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो बताएं, अदरवाइज सेशन को हम एंड करते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारे बोलेंगे। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मेरा नमस्कार, अखिलेश वर्मा बोल रहा हूँ। जय हो गुरुदेव, जय हो। जी जी नमस्कार, बहुत अच्छा योगा आपने सिखाया, बहुत अच्छा, बधाई के पात्र हैं सभी लोग। योगासन नहीं था, ये मल्टीप्लेक्स योगा था, ये हम लोगों का डिवाइस किया हुआ, मेरा डिवाइस किया हुआ, क्योंकि फॉर वर्किंग, दिस वाज नॉट मेंट फॉर एनीथिंग, दिस वाज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपको 5 मिनट हो तो कैसे करेंगे, 10 मिनट हो तो कैसे करेंगे। एक चीज मैं भूल गया, अगर किसी को स्ट्रेस है तो क्या करना चाहिए। देखो मैं वज्रासन में बैठा हूँ या कुर्सी पे बैठा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे कोई डिप्रेशन है, मुझे कोई डर लग रहा है, मुझे इंटरव्यू में जाना है, मुझे एग्जाम में जाना है, क्या करूँ। आप सांस भर लीजिए और एक एक मसल्स हेड से लेकर के और पैर तक सारी मसल्स को खींच लेते और बॉडी के साथ देते हैं, मुंह से छोड़ देते हैं, फिर हम पूरी सांस भरते हैं। आपकी स्पॉन्डिलाइटिस, आपका हेडेक, आपका आंख का, मैंने सारी मसल्स को खींच लिया पूरी, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो मेरी जो भी निगेटिव एनर्जी थी वो मेरी एनर्जी बढ़ाने में लग गई। कई बार गुस्सा आया, अगर घर में गुस्सा किया तो आप जानिए भाई, तो उस गुस्से को आप अपने मसल्स बनाने में लगा दीजिए। कहीं कहीं कोई चीजें आपके विपरीत हो रही है, उस समय आप उस ऊर्जा को, आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक प्रयास करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उससे भी कम हो जाएंगे, आपकी बॉडी भी इंप्रूव हो जाएगी। एक चीज जरूर है कि पत्नी के सामने ये मत करिएगा, वरना जिम्मेदारी आपकी। अगर वो समझ गई कि गुस्सा दे तो भाई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ साहब, आप कुछ बोल रहे थे? ये I want to know yoga आसन to improve memory। यस, एक तो सर्वांग आसन इसमें बहुत जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि आपका शीर्ष आसन बहुत जरूरी है। वाई? क्योंकि आपके जो ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है, बोलिए बोलिए, that will nourish all your brain cells। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो हम लोग बोलते हैं ना ओंकार साधना, ओंकार साधना एक साथ कंप्लीट पैकेज है। अगर ढंग से करना आ जाए ओंकार साधना, आ ओ मा, आप 10 मिनट में फोन करो, एक्चुअली मैं लाइव में सारा सिरदर्द खत्म हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। आप देखें, आप ये 16:30 4:30 दबा दीजिए, ये कर दीजिए। ये जिनके ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। आप देखें, आपने इसको दबा दिया, जब भी कभी आपको, ये दिन में कई बार करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम मैजिकल है। ओंकार में वैसे सब आता है, ओम लम। आप देखिए हर जगह ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाने का रास्ता है, बिल्कुल एक चैनल बन जाता है। स्पाइन स्ट्रेट रहे और केवल वर्टिब्रा पे ही लोड रहे, इधर उधर मसल्स पे लोड ना हो, पर्पस एक ही है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत कारगर है। साथ ही साथ आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। दूसरी चीज, नींद अच्छी ले। नींद अच्छी लेने का भी तरीका मैंने बताया। नींद लेने का एक ही तरीका, आप पीठ के बल सोएंगे, योगी का जो नींद है, आपको बढ़िया नींद आएगी। डीप ब्रेथ जो लेगा उसकी नींद भी डीप होगी। प्लीज टेक डीप ब्रेथ, एंड डीप ब्रेथ हो सके अगर बार बार वॉशरूम जाते हैं तो सोने के पहले थोड़ा सा कम पानी पिए। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम उसको पानी पीना चाहिए, जिससे हार्ट अटैक ना आवे रात में। तो आप थोड़ा पानी कम पिए और खूब डीप ब्रीदिंग करें। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। चंद्र नाड़ी को आपको एक्टिव करना है। जब भी आपको रिलैक्सेशन हो चाहिए, ब्लड प्रेशर लो चाहिए, आपको लेफ्ट
नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करना है। ब्लड प्रेशर हाई करना है, राइट नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करना है। कफ है आपका, म्यूकस है, तो आपको राइट नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए दो तरीका हो सकता है, आप नॉस्ट्रिल से दें, मुंह से निकालें, नॉस्ट्रिल से दें, मुंह से निकालें। वैसे उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन उल्टा मैं सजेस्ट नहीं करता, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिल्टर हो जाना चाहिए, एयर फिल्टर हो जाना चाहिए। ओंकार साधना जबरदस्त है, और अगर जो ओंकार साधना 5 बार करेगा 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद वैसे ही नहीं। वैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, लोगों को उछलने का भी एक्सरसाइज कराता हूँ, जो मैं कराता हूँ नॉर्मली। मैं अधिकतर चीजें जो भी हमारे ट्विस्टिंग विस्टिंग है, जंप करता है, इससे क्या होता है मेरी कार्डियक मसल्स जो है काफी एक्सरसाइज हो जाती है। तो क्योंकि बच्चों के लिए उनको बैठना बड़ा मुश्किल है, तो बेस्ट है आप ये देखिए, इंस्टेड ऑफ रनिंग आप देखिए इस तरीके से दौड़ भी सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, और हम अपनी सारी योगा की एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं। और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, पैदल जब चलता हूँ तो नॉस्ट्रिल पे ध्यान देता हूँ। देखिए ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं अपने नॉस्ट्रिल को देख रहा हूँ तो मेरा फोकस बढ़ रहा है, मैं मुझे रोड भी दिख रही है। लेकिन जब मैं कमरे में हूँ तो मैं थर्ड आई पर फोकस करता हूँ। व्हाई? थर्ड आई इज अ प्लेस ऑफ डीप रिलैक्सेशन। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपकी दोनों आंख थर्ड आई पे अटकी होती है, और जब आप स्वप्न देखते हैं तो आंख खुद नहीं चलती है। तो इसलिए डीप स्लीप के लिए, डीप रिलैक्सेशन के लिए आपको याद होगा, साधु लोगों को आपने देखा होगा थर्ड आई पे निगाह रखते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जब आप रूम में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो आप क्या करें, ये करें, डीप ब्रीदिंग करें। तो आप डीप ब्रीदिंग, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करने से आपको टेंशन भी कम होगा। जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा जल्दी जल्दी ब्रीदिंग होगी, गुस्सा ज्यादा होगा ब्रीदिंग जल्दी जल्दी होगी, आपकी लाइफ कम होने वाली। लाइफ को बढ़ाने का एक ही तरीका है डीप ब्रीदिंग। तो मैं 2 मिनट में एक ब्रीथ देने का सिस्टम सिखाता हूँ। 1 मिनट इनहेल एंड 1 मिनट एक्सहेल। 2 मिनट में एक, नॉर्मली कुछ लोग 2 मिनट में 50 ब्रीथ लेते हैं। तो आई हैव सेव्ड 49 ब्रेथ एंड आई हैव सेव्ड मोर देन 98% ऑफ द थॉट। तो हमारा फोकस बढ़ा तो मेरी मेडिटेशन बढ़ेगी, मेरी सक्सेस बढ़ेगी। ब्रीदिंग will be controlling your mind and your mind will be controlling your body. Please remember, so control the breathe. The pranayama is to control the prana. So simple. Any other questions, sir? Thank you. Good. Thank you all. मैं अखिल भारतीय योग संस्थान के सभी लोग, हमारे in the memory of my guru Sri Rajkumar Tyagi ji. This session was organized, helped by my brother ji and Bhagwan Rajaram and Ashish ji, son of the Sri Rajkumar Tyagi ji. And today the chief guest was our director HR, Sri Arvind Bhatnagar ji, and the guest of honor was my CGM and the chairman of the KITM, director RKGIT, and director Ambedkar Nagar, my friend, and all the special guests was all the participants, and all these programs was organized, managed by none other than Lord Krishna. So give a big round of applause. Sir. Yes. Sir, thank you, sir, for holding such kind of sessions, sir. These are very motivating, sir. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. If you give us the opportunity, this program will be organized regularly, but you have to attend. You have to attend. Our mission is how to keep you young beyond 125 years. No worry, no kurna, no surna. Nothing can deter you. You have infinite power within you. This was the purpose. आप लोग भी Okay. यहीं आ जाओ, धन्यवाद कर दें। वहां से नहीं, यहीं से अच्छा अच्छा। सर के साथ रहिए, ये वो है माइक है सर के पास में। हाँ, सामने खड़े हो जाइए सारे लोग। मैं भी आ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
सभी प्रतिभागियों का मैं अखिल भारतीय योग संस्थान के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने अपना बहुत समय निकाल करके आपने इस कार्यक्रम में जो शिरकत की है और आपने हमारे ये संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री एम.के. सेठ जी द्वारा बताए हुए कि योगा के और श्री सिकंदर यादव जी द्वारा आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको परफॉर्म करके लाइव आपको जो दिखाया है। इससे मैं समझता हूँ आप सब लोगों पे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर बहुत ही असर पड़ेगा, बहुत ही इफेक्टिव इंफॉर्मेटिव एक सकारात्मक जो है वो प्रभाव पड़ेगा। और अंत में मैं आदरणीय श्री राजकुमार त्यागी जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज के उनके ही याद में यहाँ पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है और आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत ठीक ट्रेजरर जी हमारे गिरधर गोपाल बहुत ही उत्तम प्रोग्राम हमारा साहब ने ऑर्गेनाइज किया और इसी के साथ साथ तो हमारे कृष्णा जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। और इसी बहाने हम राजकुमार का कि हम इस तरह से हम करते हैं कि उनके आत्मा को ईश्वर शांति प्राप्त और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया ये प्रोग्राम शिक्षा द्वारा और जिससे हम सब लोगों को बहुत ज्ञान पाया होगा। आप सबका बहुत कृष्णा जी को विशेष धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर RKGIT कहाँ है? सोमशेखर जी आप भी पहुंचे ना? सोमशेखर जी हमारा डायरेक्टर REC अम्बेडकर नगर हैं, चेयरमैन KIPM गोरखपुर थोड़ी देर पहले थे गोरखपुर